Yes, students, today we will read about the topic Delhi Sultans. In previous chapter, you have read about regions around Kaveri Delta. Means आपने चोलास के बारे में पढ़ा. River Kaveri flow through the Chola Empire. You have read about Chola Empire, but in previous chapters, in both the chapters, you have not read about Delhi. Because in those days, Delhi was not an important city. Delhi became an important city in 12th century. Delhi कब important city बनी? In 12th century. You have to learn. Earlier, Delhi was not an important city, but Delhi became an important city in 12th century, and first time Delhi became the capital of Tomara Rajputs. Delhi became the capital of Tomara Rajputs. Name of the ruler was Anangapala. Listen carefully. ये अभी दिल्ली सुल्तान्स नहीं है, ये राजपूत्स हैं. दिल्ली सुल्तान्स मैंने इधर लिखे हैं. Listen carefully. In previous chapter, you have read about region around Chola, Kaveri Delta, Chola Empire. You have not read about Delhi because in those days, I have told you, Delhi was not an important city. Delhi became an important city in 12th century, and it became the capital of, first time Delhi became the capital of Tomara Rajputs. Tomara Rajputs. राजपूत डायनेस्टीज हैं दोनों. तमारा राजपूत के अंडर ये कैपिटल सिटी बनी एंड द रूलर वाज अनंगपाला. तमारा राजपूत्स वर डिफीटेड बाय चौहानास और चमन्नास. यू हैव रेड चौहानास और चमन्नास. यू हैव रेड अबाउट पृथ्वीराज के बारे में आप पढ़ चुके हो. तो तमारा राजपूत्स वर डिफीटेड बाय चौहानास एंड under Chohanas and Tomaras, various developments took place in Delhi. Earlier, Delhi was not an important city. That's why you have not read in the previous chapter. Delhi became important city in 12th century. And first time Delhi किसके अंडर कैपिटल बनी? Tomara Rajputs. Anangapala was the ruler. And Tomara Rajputs were defeated by, किसने उनको हरा दिया? चौहानास ने. पृथ्वीराज चौहान. Tomara Rajputs were defeated. Delhi made great progress. Various developments took place in Delhi under Tomara Rajputs and Chauhanas. दोनों के पीरियड में ही दिल्ली में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई. Various Delhi became commercial city under Tomara Rajputs and Chauhanas. Commercial city बन गई. It became commercial city under Tomara Rajputs and Chauhanas. अब rich Jain merchants, they came and settled in Delhi, and they constructed various temples in Delhi. Rich Jain merchants Delhi में आए, settled there, and they built various temples in Delhi. And coins were also minted in Delhi and known as called, जो coins थे क्या कहा गया उन्हें? Delhi wall. Coins were also minted in Delhi called Delhi wall and had wide circulation. अभी मैंने जितना बताया, I am going to repeat it again. Delhi became the first capital under Tomara Rajputs. Anangapala was the ruler, and then Tomara Rajputs were defeated by Chauhanas, and Prithviraj Chauhan learned the name of the ruler. Delhi became commercial city under Tomara Rajputs and Chauhanas. Rich Jain merchants settled in Delhi, and they built various temples in Delhi. And coins were minted in Delhi called Delhi wall, had a wide circulation. Next, in 13th century,
ये 12th सेंचुरी। अब इन 13th सेंचुरी दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। अब आगे दिल्ली सुल्तान्स। In 13th century, Delhi became the capital of Delhi Sultans. In previous chapter, you have read about Muhammad Ghori. मैंने आपको गौरी के बारे में बताया था. गौरी came to India and he invaded India, and in the first battle of Tarai, he got defeated from Prithviraj. But in second battle, he won. गौरी एंड पृथ्वीराज में 2 battles हुई थी. बैटल ऑफ तराई 1, बैटल ऑफ तराई 2. यू हैव डन ऑल दीज. इन फर्स्ट बैटल गौरी गॉट डिफीटेड एंड सेकंड बैटल ही वॉन. अब गौरी यहाँ नहीं रहा, इंडिया में नहीं रहा. ही वेंट बैक टू हिज कंट्री एंड ही लेफ्ट हिज एम्बेसडर टू इंडिया. ही लेफ्ट हिज आप कह सकते हो अपना एक ट्रस्टवर्दी पर्सन इंडिया में छोड़ के गया. उसका स्लेव था ये कुतुबुद्दीन ऐबक. गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया छोड़ गया, दिल्ली में छोड़ गया एंड मेड हिम गवर्नर ऑफ दिल्ली. कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का गवर्नर बन गया. जब गौरी की डेथ हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट. अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? वैसे ही आप पढ़ के आए हो प्रीवियस चैप्टर ऑफ रेड कि व्हेनेवर रूलर बिकेम वीक, समंताज और चीफ्स दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट. आपको याद आ गया दंती दुर्गा के बारे में? जब उसका कर्नाटका का चालुक्य डायनेस्टी का रूलर वीक हुआ था तो दंती दुर्गा डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट. सेम एज हियर व्हेन गौरी की डेथ हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लगा कि अब कोई भी नहीं है उसको देखने वाला. दैट्स व्हाई डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट. कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी. दैट्स व्हाई दिस डायनेस्टी केम टू बी नोन एज स्लेव डायनेस्टी. तो इस डायनेस्टी को नाम क्या मिला? स्लेव डायनेस्टी. इज इट क्लियर? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ये डायनेस्टी से रूल स्टार्ट हुआ. दिस फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान स्टार्टेड इन दिल्ली. बिगिनिंग इनसे हुई है, स्लेव डायनेस्टी से. ठीक है. 13th century. In 13th century, Delhi became the capital of Delhi Sultans. Qutbuddin Aibak, he was slave ruler. Earlier he was slave of Gauri, but after the death of Gauri, he declared himself independent and became the Sultan of Delhi. Qutbuddin Aibak Delhi का सुल्तान बन गया. Who constructed Qutub Minar? You know it very well. Complete नहीं कर पाया था. Qutub Minar was completed by Iltutmish. He started building Qutub Minar, but इसकी डेथ हो गई and then Qutub Minar was completed by Iltutmish. तो कुतुबुद्दीन स्लेव आ गई दिल्ली सुल्तान्स. दिल्ली सुल्तान्स के अंडर दिल्ली became the capital. दिल्ली सुल्तान्स built various cities in Delhi. They built new cities. अब वो न्यू सिटीज कौन कौन सी थी? जहांपना, सीरी, दिल्ली कुन्हा. जहांपना, सीरी, दिल्ली कुन्हा. Sultans, Delhi Sultans made new cities in Delhi, such as Dilli Kunha and next Siri and Jahanpana. And these cities collectively these days known as Delhi. अब ये collectively क्या बन गई? दिल्ली. आज की डेट में हम इन्हें दिल्ली में ही, दिल्ली की ही पार्ट है ये. These sultans, Delhi sultans built cities, new cities. उनकी 3 cities के नाम आपको पता होने चाहिए. जहांपना, दिल्ली कुन्हा and Siri. And these days these are known as, collectively known as Delhi. ये दिल्ली को ही, दिल्ली का ही पार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ डू वी नो अबाउट दिल्ली सुल्तान? से हम बाद में करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज? कहाँ से आई इंफॉर्मेशन? हिस्टोरियंस के पास ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई?
First of all, there were coins, inscriptions, but valuable resource of that period was, उस पीरियड का जो मेन आप कहोगे ना वैल्यूएबल सोर्स ऑफ नॉलेज, दैट वाज हिस्ट्रीज और त्वारीख्स, histories or tawarikhs, histories or tawarikhs, tawarikhs, histories और tawarikhs. Tawarikhs word आपने लर्न करना है. These tawarikhs were written by learned scholars, poets, courtiers of the rulers in Persian language. Why in Persian language? Because the main language of that time of the administration was Persian, which was the main language of Delhi Sultans. Persian, main language of the administration under Delhi Sultans, Persian. So tawarikhs or histories were written in Persian language. And these tawarikhs were written by learned scholars, poets, courtiers. ये लोग इन tawarikhs को लिखते थे. In tawarikhs, they praised their ruler. They wrote about their ruler. जैसे imagine इल्तुतमिश के बारे में किसी ने लिखना है तो तवारीख लिखने वाला इल्तुतमिश की प्रेज ही करेगा. They wrote about their rulers. And mostly they praise their ruler in the tawarikhs. These tawarikhs writers, they lived in cities. They lived in Delhi, mostly in Delhi. They lived in cities. So they had no contacts with the village people. That's why they wrote only about rulers, not about people. They wrote about their rulers, and in tawarikhs, they praised their rulers. Rulers की praise करते होते थे. And also guided rulers how to run the administration, because these were scholars, poets, learned people, and sometimes they guided ruler how to rule. अब यहाँ पे आपने बताना है किस किस फील्ड में ये लोग उनको गाइड करते थे. They advised rulers. These authors, ये जो authors होते थे tawarikhs के, they advised rulers to preserve an ideal of social order based on birthright and gender distinction. These authors advised rulers to follow the ideals such as based on birthright and gender distinction. Birthright means अगर किसी का बर्थ नोबल फैमिली में होता तो पर्सन की लाइफ लग्जूरियस होती. He got all the rights by birth. By birth rights मिल जाते थे किसी को. अगर किसी का बर्थ नोबल क्लास फैमिली में हुआ तो all the rights were given to the person. बट अगर किसी का बर्थ लो और पुअर फैमिली में हुआ तो उसकी लाइफ मिजरेबल होती थी. तो ये लोग बर्थ राइट में बिलीव करते थे. ऑथर्स ऑफ द तवारीख्स गाइडेड देयर रूलर, अपने रूलर्स को इन्होंने गाइड किया टू फॉलो बर्थ राइट्स एंड जेंडर डिस्टिंक्शन. मीन्स बर्थ राइट पे बिलीव करो, बर्थ के अकॉर्डिंग लोगों को राइट्स दो. एंड जेंडर डिस्टिंक्शन मीन्स वुमेन को इंफीरियर रखो. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल में डिस्क्रिमिनेट करो. वुमेन को लो रैंक पे रखो, लो स्टेटस पे रखो. वुमेन को इंफीरियर, कंपेयर वुमेन इंफीरियर एज मैन. वुमेन को लो रखो, वुमेन को हाई पोजीशंस नहीं दो. तो ऐसे व्यूज थे इन ऑथर्स के, दोज हु रोट तवारीख्स. तवारीख्स की लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन लैंग्वेज. Who wrote learned scholars and poets, courtiers, they wrote these tawarikhs. These, so about this period main source of knowledge क्या है? histories और tawarikhs. कौन लिखते थे? learned scholars. In which language? Persian language. किसके बारे में? rulers के बारे में.
lived in cities, had no contact with village people, so they didn't write about the common people. They wrote only about the king and guided king to follow gender distinction and rights based on birth. ऐसी वाली चीजें रूलर को गाइड करते थे कि इन चीजों को फॉलो करो, ठीक है। अब व्हाट हैपेंड इन 1236, रजिया सुल्तान became the ruler of Delhi. अभी तो मैंने कहा कि वुमेन को कहते थे लो रैंक पे रखो, बट इन 1236 रजिया सुल्तान became the ruler of Delhi. 1236 में रजिया सुल्तान जो थी ना, she became the ruler of Delhi. Woman, first woman ruler in history. First woman ruler in history, Razia Sultan, daughter of Iltutmish. She was the daughter of Iltutmish and she became the ruler of Delhi because Razia was more capable and qualified than her brothers. Razia जो थी ना, she was capable, more capable, and she was more qualified than her brothers. अपने ब्रदर्स से ये ज़्यादा, इसके ब्रदर्स जो थे ना वो केपेबल नहीं थे, ठीक है, जैसे हम कहते होते हैं नालायक थे, तो हिज ब्रदर्स वर नॉट केपेबल टू बिकम द रूलर. सो इल्तुमिश ने सारी क्वालिटीज किसमें देखी? अपनी बेटी में. सो इल्तुमिश ने किसको रूलर बनाया? अपने बेटों को नहीं बनाया. किसको बनाया? बेटी. बिकॉज रजिया वाज केपेबल एंड वेल क्वालिफाइड, had all the qualities to become a ruler. So Razia became ruler of Delhi Sultanate in 1236. अब आप अपने आप सोचो, क्या लोग उसकी फेवर में होंगे? नो, पीपल वर नॉट इन द फेवर ऑफ वुमेन रूल. अभी भी हमारे यहाँ पे इंडिया में पैट्रियार्चल सोसाइटी है, ठीक है. अभी तो इतना एडवांस पीरियड आ चुका है, अभी भी लोग बिलीव करते हैं पैट्रियार्चल सोसाइटी में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है. तब के लोगों के बारे में सोचो, ठीक है. दे बिलीव्ड इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो हाउ दे कुड एक्सेप्ट रजिया एज देयर रूलर? तो रजिया को कैसे अपना रूलर एक्सेप्ट करती? दे वर टोटली, तब के नोबल्स, दे वर टोटली अगेंस्ट रजिया. वो नहीं चाहते थे, दे डिडंट वांट टू बी रूल्ड बाय अ वुमेन. वो वुमेन के अंडर नहीं आना चाहते थे, वुमेन के रूल के अंडर नहीं आना चाहते थे. दे कंसिडर्ड वुमेन एज इंफीरियर्स देन मेन. वो हमेशा वुमेन को मेन से इंफीरियर मानते थे. तो दैट्स व्हाई दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद वुमेन रूल. तो रजिया रूल्ड ओनली फॉर 4 years. रजिया सिर्फ 4 year रूल किया, इसका मर्डर हो गया था रजिया का. 1240 में रजिया वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन. रजिया ने सिर्फ कितने साल रूल किया? ओनली 4 years. बिकॉज तब के लोग, पीपल ऑफ दैट टाइम, नोबल्स, दे वर नॉट हैप्पी विद the woman rule, with Razia's rule. They were not happy, though she was well qualified, capable, she was taking good decisions for the administration, but her rule was not accepted by the people because she was woman. People in those days believed in gender discrimination. Minhaj-e-Siraj you have read about in the first chapter. Minhaj-e-Siraj, a chronicler of that time, he himself wrote, उसने खुद लिखा है, though Razia was capable. Minhaj-e-Siraj के words हैं ये. He said that Razia was capable, but he himself didn't want his rule. He was not in the favor of Razia's rule. Minhaj-e-Siraj ने खुद लिखा है कि though she was capable, she was ruling well, अच्छा रूल कर रही थी, but he himself was not in the favor of women rule. ठीक है, वो खुद कहता था कि वो वुमेन के रूल की फेवर में नहीं है. वो कहता होता था इट वाज अगेंस्ट द गॉड्स लॉ, क्योंकि तब के लोग कहते थे कि भगवान ने ही वुमेन को इंफीरियर बनाया. वो कहता था इट वाज अगेंस्ट गॉड्स लॉ, गॉड के लॉ के अगेंस्ट हो गया. गॉड ही नहीं चाहता कि वुमेन रूल करे, क्योंकि गॉड ने तो खुद ही वुमेन को इंफीरियर रखा है. ऐसी तब के लोगों की ऐसी थिंकिंग थी. तो मिन्हाज-ए-सिराज ने भी ऐसे बोला कि वाज नॉट इन द फेवर ऑफ द वुमेन रूल. अब on her coins, Razia mentioned her name. रजिया ने अपने नेम को मेंशन किया on her coins. रशिया ने अपना नेम मेंशन किया. वेयर एज, मैं अब आपको एक एग्जांपल बताती हूँ.
क्वीन रुद्रमा देवी ऑफ काकतिया डायनेस्टी ऑफ वरंगल, आज की डेट में हम कहेंगे आंध्र प्रदेश वाला एरिया। क्वीन रुद्रमा देवी ऑफ काकतिया डायनेस्टी वरंगल, आज की डेट में मैंने कौन सा एरिया बोला है? आंध्र प्रदेश वाला एरिया। क्वीन रुद्रमा देवी ने क्या किया? क्योंकि पीपल बिलीव्ड इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, she had not mentioned her name on her coins. रजिया ने अपना नेम मेंशन किया, बट क्वीन रुद्रमा देवी हैड नॉट मेंशनड हर नेम ऑन द कॉइन्स। उसने कॉइन्स पे अपना नेम मेंशन नहीं किया। क्या लिखा? She presented herself on the coins as she was male. उसने अपने आप को इस वे से प्रेजेंट किया कि वो एक मेल है। कॉइन्स पे उसने अपना नेम मेंशन ही नहीं किया। शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ एज अ मेल। ठीक है, रजिया मेंशनड हर नेम ऑन द कॉइन्स। रजिया ने अपना नेम मेंशन किया, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश रजिया। वेयर एज ककतिया डायनेस्टी की क्वीन रुद्रमा देवी, आज की डेट में जो आंध्र प्रदेश है, वरंगल, शी हैड नॉट मेंशनड हर नेम ऑन द कॉइन्स। वो डर गई मीन्स, है ना। तो शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ ऑन द कॉइन्स एज शी वाज मेल। उसको था कि अगर मैं एज ए वुमेन अपने आप को मेंशन करूंगी तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, क्वीन दीदा रूल्ड इन कश्मीर। क्वीन दीदा, DIDDA, रूल्ड इन कश्मीर, है ना। ये दीदा वर्ड बना दीदी से। शी वॉज नोन एज दीदी, बट ऑन हर कॉइन्स शी मेंशनड हर एज दीदा। दीदा से लगे लोगों को कि कोई मेल है। ठीक है, क्वीन दीदा, पॉपुलरली नोन एज दीदी, बट शी मेंशनड हरसेल्फ ऑन द कॉइन्स एज दीदा। ताकि ये सब मैं क्यों बता रही हूँ? बिकॉज पीपल ऑफ दैट टाइम वर नॉट इन द फेवर ऑफ वुमेन्स रूल। वुमेन के रूल की फेवर में नहीं थे। रजिया सुल्तान became the ruler of Delhi. This was not tolerated by nobles. ठीक है, and Minazir Siraj, he also didn't want to rule by a woman. उसने खुद ही कहा था कि वो वुमेन के रूल के अंडर नहीं रहना चाहता। It was against the God's law. उसको था कि गॉड के लॉ के भी अगेंस्ट है, because God made women inferior. So that's why. And I have told you about Rudrama Devi and I have told you about Dida. रजिया ने बिल्कुल लोगों की परवाह नहीं की। शी मेंशनड हर नेम ऑन द कॉइन्स। उसने मेंशन किया अपना नेम। रजिया वाज ब्रेव, बहुत ब्रेव थी रजिया। वारफेयर मेथड्स, हर चीज में परफेक्ट थी रजिया। बट इसे रूल करने का टाइम नहीं मिला, इसे इसका मर्डर हो गया। तो रजिया वाज ब्रेव, शी मेंशनड हर नेम ऑन द कॉइन्स, बट रुद्रमा देवी, उसने अपना नेम मेंशन नहीं किया। आंध्र प्रदेश की जो क्वीन थी, तब की आंध्र प्रदेश नहीं था, वरंगल ककतिया डायनेस्टी थी। शी हैड नॉट मेंशनड हर नेम, शी मेंशनड हरसेल्फ एज मेल। एंड दीदा, दीदा मेंशन किया कश्मीर की क्वीन ने, पॉपुलरली नोन एज दीदी, बट शी मेंशनड हर एज दीदा। सो दिस इज अबाउट हाउ पीपल वर अगेंस्ट वुमेन्स रूल। लोग वुमेन के रूल की फेवर में नहीं थे। तो listen again, I'm going to repeat it again. First of all, in previous chapter you have read about, listen students, yes Ruhani, what's the problem? In previous chapter you have read about region around Kaveri Delta. You have not read about Delhi. Delhi was not important city in those days. Okay? Delhi became important city in 12th century. 12th century में दिल्ली important city बनी। First, Tomara Rajputs made Delhi as their capital. Anangapala made Delhi as its capital. First जो capital बनाई वो किन्होंने बनाई? Tomara Rajput. One more question can be asked. Tomara Rajputs. दिल्ली first time किसके अंडर capital city बनी? Tomara Rajputs. Then Tomara Rajputs were defeated by Chauhanas, Prithviraj Chauhan. And under these two rulers, these Rajput dynasties, Delhi made great progress. It became the commercial city. Temples bane, rich Jain merchants aa gaye. They built beautiful temples in Delhi, and
coins were minted in Delhi known as Delhi Wal, ठीक है. Then came Delhi Sultans. In 13th century Delhi Sultans made Delhi as their capital. अब दिल्ली ही रहेगी कैपिटल, ठीक है. तो दिल्ली became their capital. सिर्फ एक रूलर ने अपनी कैपिटल चेंज की थी, वो था मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल चेंज करनी है. मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक, इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करनी है बस. दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स. फिर आपने दिल्ली सुल्तान्स के बारे में मैंने आपको बताया. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लैक बोर्ड पे है उसका कर लेते हैं. लुक हियर, स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन. बलबन लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स के नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन. Then came Khalji dynasty. After the downfall of slave dynasty, Khalji dynasty came in power. Jalaluddin was the founder and Alauddin important ruler of Khalji dynasty. Next came Alauddin Khalji, बहुत important ruler है, बहुत से changes इसने किए, आप इसके changes को पढ़ोगे भी. Next Tughlaq dynasty, Yasuddin Tughlaq and Muhammad bin Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq. These were the rulers of Tughlaq dynasty. Yasuddin Tughlaq, Muhammad bin Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq. ठीक है. Then came Sayyid dynasty. Khizr Khan was the founder. Who was the founder? Khizr Khan. Then came Lodi dynasty. Lodi dynasty founder was Behlol Lodi. And last जो था that was Ibrahim Lodi, who fought the first battle of Panipat with Babur. And then after the downfall of Delhi Sultanate, Mughal dynasty came in power in India. मुगलों का रूल इंडिया में आ गया था आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत. ठीक है. बेहलोल लोधी वाज द फाउंडर एंड इब्राहिम लोधी, आप कह सकते हो लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर. इब्राहिम लोधी एंड बाबर में ही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी. एक यहाँ पे एक बात बताऊं, जब बाबर इंडिया आया ना, बाबर को इन्विटेशन गया था. दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी का एक गवर्नर था पंजाब का, वो बहुत फेडअप था इब्राहिम लोधी से. तो ही गेव एन इन्विटेशन टू बाबर टू कम एंड अटैक दिल्ली. इब्राहिम बाबर आ गया. बाबर जब आया तो उसने पानीपत के मैदान में जब ये इकट्ठे हुए ना, तो बाबर एक बार डर गया. उसने देखा इतनी वास्ट आर्मी इब्राहिम लोधी के पास, तो बाबर डिसाइडेड नॉट टू फाइट वार. बट वार स्टार्ट हो गई. Babur had few number of soldiers, whereas Ibrahim Lodi had large number of soldiers. उसके पास vast army थी. Babur had few number of soldiers. तो जब वार स्टार्ट हुई तो नोट किया गया, बाबर ने नोट किया कि इब्राहिम की आर्मी जो थी that was not well trained. It was only the crowd of the people. उनको वार लड़नी आती ही नहीं थी, वो अपने ही लोगों को मारी जा रहे थे. Whereas बाबर की आर्मी जो थी that was well trained. और इतने से फ्यू नंबर ऑफ सोल्जर्स के साथ बाबर जीता था ये बैटल ऑफ पानीपत. और फिर इसके बाद दिल्ली सुल्तान के बाद आए मुगल्स. अब यहाँ पे एक बात और बताती हूँ. मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने बोला ही चेंज्ड हिज कैपिटल सिटी. इसे हिस्ट्री में कहा जाता है वाइजेस्ट फूल. वाइजेस्ट फूल, पढ़ा लिखा मूर्ख. पढ़ा लिखा मूर्ख क्यों? इसने दिल्ली से कैपिटल सिटी बनाई दौलताबाद, साउथ में चला गया, कैपिटल सिटी शिफ्ट कर ली, लोगों को लिया, हॉर्समैन सब अपने शिफ्ट कर लिए साउथ में. अब आप अपने आप सोचो, किसी को कहा जाए अपना घर पर छोड़ो साउथ की तरफ चलो, नॉर्थ इंडिया छोड़ो साउथ की तरफ चलो, लोगों को मजबूरी में जाना पड़ा. अब साउथ में जब गया तो देखा कि नॉर्थ में तो अटैक होने शुरू हो गए, इन्वेडर्स आ गए नॉर्थ में. तो दिल्ली तो दिल्ली तो नॉर्थ में था और वो चला गया साउथ में. And there were attacks in North India by invaders. He again called his people, go back to Delhi. फिर शिफ्ट की कैपिटल फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली. फर्स्टली फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, देन फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली. तो लोगों को सोचो कितने लॉस हुए होंगे. फिर इसने एक करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, टोकन करेंसी. टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की, लोगों ने घरों में ही बैठ के कॉइन्स बना लिए, वैल्यू सेम कर दी. गोल्ड, सिल्वर एंड कॉइन्स की वैल्यू, कॉपर कॉइन्स की वैल्यू सेम कर दी. लोगों ने क्या किया, जितने उनके पास कॉपर कॉइन्स थे ना, वो सब
रॉयल ट्रेजरी में दे दिए, घरों में कलेक्ट कर लिए गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। तो आप अपने आप सोचो रिच कौन हो गए? लोग। रूलर के पास कौन से कॉइन्स रह गए? मेटल कॉइन्स। गोल्ड एंड सिर्फ कॉपर कॉइन्स रह गए। गोल्ड एंड सिल्वर किसके पास आ गए? लोगों के घरों में इकट्ठे हो गए। तो ऐसा काम इसने, एक और इसने नालायकी की थी। चलो वी विल डू इट ऑन टुमारो, ठीक है। नॉट डिटेल्स ऑफ दीज रूलर्स आर गिवन इन दिस लेसन, लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन दी हुई है लेसन में, नो प्रॉब्लम, वी विल डू इट। हम अपने वे से अपने आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे यू हैव टू लर्न द डिफरेंट डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। आपको ये पूरी सीरियल ऑर्डर में आनी चाहिए, दिल्ली सुल्तान्स की डिफरेंट डायनेस्टीज, इज इट क्लियर? उनके नाम आने चाहिए एंड रूलर्स के भी आने चाहिए, ठीक है।